भाई तू दस दे ना, ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਵਾਲਾ? नहीं, एक किस चीज की प्लानिंग हो रही है ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਹੋਈ ਕਿ नहीं ओए ਹੋਈ। काफला कोई काफला एतराज? लुटन की प्लानिंग हो रही है, काफला तजारती काफला लुटन की प्लानिंग हो रही ਜਨਾਬ है ਕਿੱਥੇ सरकारी ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ मुसलमान ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ लुटिया? मतलब सरकारी मुसलमान लुटिया किथे दिखाते ने कि तजारती काफले लुटन वास्ते नबी कहंदे भी चलो ਭਾਈ अल्लाह ताला मदद ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ फरमाएगा। ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ, ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। भी लिखिया मुसलमानों ने लिखिया ना यार, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ मतलब ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? एक किस ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ? ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਆਖੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਵਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? मतलब एक नबी एक लुटन की प्लानिंग कर सकता है? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो फिर आ किस तरह ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਸੁਣ ਓਏ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਣ। ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ FIR ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ FIR ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਹਲਵੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਲੈਨ ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਰਤ ਹਲਵੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਈ ਯਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਬਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਲੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਲੁੱਟਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਓਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ चलिए लूटिए दू जाके जिदा कमर्शियल से क्या दोस्तों खून चूसने चलते हैं। हद हो गई है यार। मतलब है कि ताडे सरकारी मुसलमाना ने ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਾਫਰ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ? आप पढ़ना लिखा गरज जब वो तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए। क्यों रवाना हुए से जी मदीने तो तजारती काफिला की करना सी ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਬੂਤ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਪੜਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਪੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਜਿੱਥੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਨਤ ਅਮਾਨਤ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਰ। ਪੜਨ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। वो आ गया दोस्त मेरा, आ गया यार मेरा आ गया ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੁਰਕਾਨ आ गया यार आ गया ਜੀ। ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੋ। ਇੰਜ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी, चलो जी, मैं लिखदा वां। इस सरकारी मुसलमान की फरमांदे ने अपनी किताबां दे अंदर नबी दा किरदार माशाअल्लाह बयान हो रहा है, जो कि मुनकरीने अंबिया जड़े ने या ईसाई या यहूदी जड़े ने इतराज करदे ने। सरकारी मुसलमान खुद लिखदे ने, ये ऐसा कंटेंट अपना बयान करदे ने जिहदी वजह तो रंगीला रसूल किताब लिखी गई है। इसी सहाफत तो ये सीरत दी किताबां जो सरकारी मुसलमाना दे, ये जरा मुलाहिजा करो। सीरत हलबिया दे अंदर जिल्द 2 में दी अंदर सरकारी मुसलमान की फरमांदे ने, ये एक नबी दा किरदार बयान हो रहा है कि नबी प्लानिंग कर रहे अपने साथियों दे नाल तजारती काफले लुटण दी।
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। की फरमाते ने सरकारी मुसलमान कि जी जब वो तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए, मतलब उस उन्होंने लुटने वास्ते हद हो गई है यार कि मतलब एक नबी जड़ा वे अपने साथी ना तजारती काफिला लिखा भी एक तो होंगे ना कि कोई लश्कर आंडिया को लड़न वास्ते आ रहा है, चलो फिर भी कोई गल है। ये तजारती काफिला लुटने वास्ते जड़ा है वो कह रहे हैं कि जी आपको इतला मिली काफिला शाम से वापसी के लिए रवाना हो चुके, पहली दफा तो नहीं मिले हो, दूसरी दफा वो वास्ते तजारती काफिर आ रहा है जिसके पास इनका मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। बाकायदा लिखा हुआ है। ये कौन कह रहा है? सरकारी मुसलमानों के मुताबिक आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें उससे फायदा अता फरमाए। बस मनु ये पूछना में कि ए नबी इस तरह की लुटन की प्लानिंग कर सकता है? मेरी गल खत्म हुई ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 45 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਹਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿਲਦ 2 ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਤੇ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਜ਼ਿਆਰਤੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਇਹ ਜਿਲਦ 2 ਦਾ ਸਫਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 1 ਮਿੰਟ, ਸਫਾ 6 ਨੰਬਰ 6, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 6। ਅਗਰ ਮਤਬੂਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, एवे कुतुबखाना कासमी देवबंद यूपी इंडिया अदारा कासमिया जिल्द 2 किस्त शशम, ये पुराना को एडिशन इना दा। बिल्कुल ठीक। बस हुण ना गुफ्तगू शुरू होएगी। 2 मिनट ज़ियारतुल तुहाडे कोल ने, तुहाडा टाइम शुरू मैं कर रहा जी। मुरब्बी साहब कोलों मैं पुछ रहा सी कि नबी जड़ा अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदा कि नबी खियानत नहीं कर सकदा, ठीक है जी। ये पैंदियां लैंदियां इन्होंने जो मिर्ज़ियां दे काम है, जो इन्होंने सिखाया इन्हों की जमात ने कि मिर्ज़े गुलाम कादियानी दा जो भी करतूत सामने आवे तुसी पकड़ के अंबिया कराम ते हमला करना। जो भी करतूत मिर्ज़े दा दस्या जावे तुसी सीधा अंबिया कराम की जात ते हमला करना, उन्होंने ते उंगली चुकनी। यही मिर्ज़ियां दा काम सारा दिन यही काम करते हैं। मिर्ज़े का जो करतूत विखा दो, इन्होंने पैगंबरां ते अल्लाह के नबियां ते जाके हमला करना। सवाल ये सी कि नबी खियानत नहीं कर सकता। जवाब यह है जी कि सीरत हलविया च लिखिया वा कि जी वो काफिला लुटन दे प्लैनिंग हो रही है। बई मैं ये सवाल किया सी तेरे को, अगर तेरे को कोई सबूत है इंज दा ते वो तू पेश कर दे, जे नहीं है सबूत मैं तेरे को दूजी बारी को नहीं पूछना। जे तेरे को इस चीज़ का कोई सबूत आ कि नौज बिल्ला किसी पैगंबर ने किसी की अमानत च कोई खियानत की आ तो वह सबूत पेश कर दे। जे तू इस गल ते बहस करनी है, एहदे ते करनी है गुफ्तगू, ए काफिले वाला की मामला सी ते एहदे ते कर ला। उधरों हाथ खड़े कर दे कि भाई मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नूं इस म्यार ते सच्चा नहीं साबित कर सकता क्योंकि उसकी खियानत पकड़ी गई है, तो एहदे ते गुफ्तगू कर लेने। तो जे नहीं मौजू ते ही गुफ्तगू करनी है जेड़े तेरे नाल छेड़िया वा तो फिर सबूत हैगा तो वह लै, नहीं तो मैं अगली टर्न दे विच मिर्ज़े गुलाम कादियानी दी खियानत तैनूं विखाना वा तो फिर मैनूं दस दें भी अल्लाह ताला ते फरमांदा कि नबी खायन नहीं हो सकता, नबी खियानत नहीं कर सकता। तो मिर्ज़ा खियानत करके किंज नबी हो गया? तो वह भी मेरा इल्ज़ाम नहीं, मिर्ज़े दा अपना करार, अपने मूँह ने करार किया कि मैं खियानत की। ए जवाब दे दिओ हुण तुसीं गल किहड़ी ते करनी आ, ते जे खियानत ते गल करनी ओहदा कोई सबूत कोई जवाब है तो दिओ। इधर उधर जे जाना तो फिर हथ खड़े कर दें कि मैं होर किसी टॉपिक ते गल नहीं करनी, मैं इहदे ते गल करनी, फिर उह ते गल कर लांगे जी। ए तुहाडा टाइम शुरू होया जनाब। जनाब मैं हवाला पेश करता है और मैं सिर्फ इत्ते गल करनी है, बाकी टाइम तुहानू देने आ, करो जी। ज़िया साहब आपका टाइम शुरू हुआ। अच्छा, तो सवाल की पूछा सी आन के कि नबी का की किरदार होना चाहिए, की म्यार होना चाहिए। तो मैं असी तेन कुरान पाक चो आयत पढ़ के दसी कि अल्लाह ताला फरमांदा कि नबी खियानत नहीं करदा। ऐ तू कबूल कर रहा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी खियानत उन्हें की, लिहाजा वो नबी नहीं सी? ऐ कबूल कर ला, फिर दूसरे टॉपिक ते कर दें गल। दिओ जवाब जी। आपका टाइम फुरकान साहब शुरू हुआ। जनाब मैं सब दोस्तों नू बराड़ च हवाला पढ़ के सुनाया, किताब नंबर भी इन्होंने जिल्द भी पूछी, सफ़ा नंबर भी पूछा, सारा कुछ पूछा, दस दिता गया इन्होंने। मैं सिर्फ इसी ते गल करांगा और मैं अपना सवाल रखता सी कि की नबी चोरी की प्लानिंग, लुटमार की प्लानिंग कर सकता, अपने दोस्तों नाल ताकुब कर सकता तजारती माल वास्ते। वो बाद की गल मिले ना मिले, नीयत सी मतलब लुटन की सरकारी मुसलमानों के मुताबिक। और मैं इसी हवाले नू जड़ा वे ज़िया रसूल साहब के सामने रखदा इत्ते गल करना। मेरा टाइम, मैं उन्हें टाइम देना अपना।
ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਿਆਨਤ ਦਾ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲਾ। आ जा। जी जनाब फुरकान साहब, आपका टाइम शुरू करने से पहले अर्ज कर दूं कि वो किताब मेरे सामने खुली हुई है, उसके अंदर सफ़ा 6 के ऊपर, जिल्द 2 सफ़ा 6 के ऊपर कोई भी नहीं है कि तजारती काफिला लूटने की गरज से सफ़र किया था। जी आप बात करें फुरकान साहब। जनाब ज़िया रसूल कह देवे कि एक नबी जड़ा वे सरकारी मुसलमानों के मुताबिक लुटमार की प्लानिंग कर सकता है, तजारती काफिले लुट सकता है, तो बाद चो मैं भी कह दूंगा, जरा हिम्मत करे ना। ये सफ़ा मैं ये दिखा दूं ज़िया रसूल, ये सफ़ा है, ये देखें जी, ये सीरत हलबिया कुतुब खाना कासमी जिल्द 2 सफ़ा 6 जो इन्होंने बताया था, इस पूरे सफ़े के ऊपर कोई लुटमार की ये बात नहीं। ये कादियानी मुरब्बी साहब जो झूठ बोल रहे हैं और बुहतान लगा रहे हैं आपके सामने। जी ज़िया साहब आपकी बात शुरू हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुरब्बी साहब, मैं तुहानू पुछ रहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या तो हथ खड़े कर दे कि मैं उन्होंने नबी नहीं मानता, या वैसे कह दे कि भाई मैं उन्होंने मानता ही नहीं, मेरा कोई तलक नहीं है उहदे नाल, ते तेरी जान छुट जाएगी। या फिर मिर्जे कादियानी दी खियानत सामने आने तो बाद क्या तू इस चीज़ का इकरार करदा कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी नहीं सी? इस गल का जवाब दे, तेरा झूठ तो शाह साहब ने उंज ही दस दिता कि इत्थे तो गल ही कोई नहीं लिखी हुई। बोलो हुण। जी फुरकान साहब मेहरबानी करें, ज़िया साहब जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप मुतालबा पूरा करें, और जो आप बात कर रहे थे उसका हवाला भी हमने आपको दिखा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और हमने आपको उसका सबूत भी दिखा दिया। अब आपका टाइम शुरू हुआ फुरकान साहब। जी मौलवी साहब, असल च तुहाडा प्रॉब्लम ये वे कि तुसी जड़ा है ना, ये तुहाडी पुरानी वारदात है, डिफरेंट एडिशन दिखानी। जड़े एडिशन मेरे कोल है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ज़िया रसूल साहब ਨੂੰ ਕੁਝ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਿੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਔਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਭਲੇ ਕਿ ਲੁੱਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। गल खत्म। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पहले सारी जिंदगी एक मिनट जी, एक मिनट, ये देख लें, ये रेख्ता वेबसाइट के ऊपर ये सिर्फ एक ही एडिशन रखा हुआ है, और ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये कोई एडिशन और है ही नहीं। कुतुब खाना कासमी देवबंद यूपी इंडिया, ठीक है। ये देखिए मैं आगे जाता हूँ, ये आगे जाता हूँ, ये आगे जाता हूँ, ये सफ़ा 6 आ गया है। ये गौर ये मैदान साबित कर दें, नहीं तो कहें कि मैंने झूठ बोला है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह। मिर्ज़ा कादियानी भी दज्जाल फ्रडिया था, झूठ बोलते गुजरी उसकी पूरी जिंदगी, बुहतान लगाते गुजरी, नहीं तो आप साबित कर दें। जी ज़िया साहब आपकी बात करें। हाँ जी मिर्ज़ई साहब, मिर्जे वाली कार तुसी भी झूठ बोलना शुरू कर दिता आंदे ही, या झूठ तेरा आसरा। ते नाले ये साडा टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक साडा है सी कि नबी खियानत कर सकदा या नहीं कर सकदा। मिर्जे गुलाम कादियानी ने की खियानत अमानत च। मेरा तेरे को यह सवाल आ कि एनजी मन्नेगा या सबूत देने तो बाद मन्नेगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी ज़िया साहब आप सबूत दें। खाइन सी नबी नहीं सी। आप सबूत दें, अपना टाइम 2 मिनट पूरे करें, सबूत देने शुरू करें। ठीक है जी, मैं जरा कढ़ लवा हवाले जी, एक मिनट दो। क्योंकि इन्होंने भी सबूत दिया है, वो अगर क्या गलत निकला है, लेकिन आप भी सबूत से बात करें। आपका टाइम अभी जारी है। जी सर जी, मैंने लैपटॉप को जा लेने दो जी, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
جب تک یہ ثبوت نہیں لے کے آتے تو میں عرض کر دوں کہ یہ جو انہوں نے ایڈیشن بتایا تھا کتب خانہ قاسمی دیوبند یو پی انڈیا سیرت حلبیہ اردو ماں اضافات، یہ صرف ایک ایڈیشن رکھا ہے سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر، اور کوئی ایڈیشن یعنی یہ کتب خانہ قاسمی دیوبند والا، اور دوسرے پاکستان کے چھپے ہوئے نسخے تو موجود ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا وہی ہم نے نکال کے دکھایا ہے، اس کے اندر یہ بات بالکل نہیں لکھی ہوئی۔ تو ضیاء رسول بھائی وہ لیپ ٹاپ کے اندر وہ پٹاری رکھی ہوئی ہے، ابھی کھلے گی پٹاری تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جو بھی بات کریں فریقین ثبوت سے اور دلیل سے بات کریں، اور پھر اس کے اوپر جیرا ہو جائے گی، حوالہ جو دیا جائے گا اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے ہم بیٹھ کے، تو پیار محبت سے دونوں فریق گفتگو کریں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، پیاری پیاری باتیں کرنی ہیں۔ آج خوشخبری ملی ہے کہ ایک قادیانی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دلائل کو دیکھ کے۔ جی ٹائم ختم ہوا جی، فرقان صاحب آپ کا شروع ہوا۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آواز آ رہی ہے، بول سکتے ہیں 2 ہاں منٹ۔ جی بالکل، یہ حوالہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں کون سا ایڈیشن کھولا ہے کیا ہے، میرے پاس یہ صفحہ نمبر 6 سیرت حلبیہ جی کیمرہ آن کر باب، کے نا وہ دکھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، سکرین ان کی بڑی کریں جی۔ اچھا ایک منٹ ادھر آئیے۔ ٹائم آپ کا جاری ہے جی۔ قادیانی مربی صاحب ٹائم آپ کا جاری ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس موجود ہے، وہ کدھر گیا؟ نہیں حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کو اسکرین میں کیسے لے کے آنا ہے سامنے تاکہ آپ کو سامنے بھی کیمرہ آن سمجھ میں کریں آئے۔ اور سامنے آ جائے گا، یہ کون سا مسئلہ؟ کیمرہ آن کرتے ہیں، آپ کی بھی زیارت آج کر لیتے ہیں۔ جی ٹائم ختم ہوا جی، ضیاء صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوا۔ ضیاء بھائی آپ کا ٹائم شروع کرو۔ میں جا رہا ہوں، میں باہر ہوں، یا تو مجھے 2-3 منٹ ٹائم دیں، یا پھر آپ وہ نکال کے دکھائیں ان کو، مکتوبات احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ خطوط ہیں جس میں اس نے اقرار کیا ہوا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، یا مجھے 2-3 منٹ ٹائم دیں۔ صفحہ آپ یاد ہے کوئی؟ یہ مکتوبات احمد اور احمدیہ آ گئی ہے، اور عامر بھائی اگر آپ کو حوالہ پتہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ اچھا میں بزی تھا، میں سینڈ کرتا ہوں، ابھی سینڈ کرتا ہوں، 1 سیکنڈ ہولڈ رکھیں۔ واٹس ایپ پہ کر دیں تو ہو میں گیا، یہاں پہ آن کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی مولوی صاحب میرا ٹائم شروع ہو گیا تو کیمرہ آن کر کے پھر دکھا دوں میں تاکہ آپ کا جھوٹ۔ ٹائم جاری ہے، آپ چپ رہیں۔ عامر بھائی شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے؟ 1 سیکنڈ میں مائک میوٹ کر لیں، میں بھیج رہا ہوں آپ کو واٹس ایپ۔ جی 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 بالکل۔ یہ لیں جی، یہ حوالہ آ گیا ہے، اور یہ لیں، یہ جناب مکتوبات احمد ہے،
اور صفحہ 305 ہے، جلد اول ہے۔ بعض احباب مجھ پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسراف کا خرچہ ہے جو 200 300 روپے ماہواری کا ہو جاتا ہے، اور اسی خرچ نے طبع کتاب میں دقتیں ڈالیں اور انبار قرضہ کا سر پر ہو گیا۔ اس کے جواب میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ اعتراض سچ ہے، مگر یہ مہمانداری محض للہ ہے، اور اس میں بھی بارہا تواضع اور اکرام ضعیف کے لیے حکم ہوا ہے، نہ تخفیف مصارف کے لیے۔ 3 سال کے عرصہ میں شاید 40,000 سے بھی کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے، اور جہاں تک طاقت تھی حسب توفیق خدا داد ان کی خدمت کی گئی۔ سو بظاہر یہ نہایت درجہ کا اسراف معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو اپنے افعال میں مصالح ہیں، اور میں اس کے حکم اور امر کا پیرو ہوں، اور کسی دوسری کمیٹی یا جماعت کی پیروی نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اس کے کاروبار میں کچھ دخل دے سکتا ہے۔ اگلا حوالہ یہ ایک ہی حوالہ یہ مجھے سینڈ کیا۔ جی اب آپ فرقان صاحب بات کر سکتے۔ فرقان صاحب آپ کا ٹائم میں شروع کر رہا ہوں۔ ہاں جی مولوی صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز ہے جی بولیں۔ ہاں ذرا دیکھیں، یہ جو میں نے کیمرہ اب آن کیا ہے تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے، جو آپ نے پہلے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ بریلوی جو تھا ضیاء رسول وہ تو بھاگ گیا، لگا گیا آپ کی ڈیوٹی ابھی، تو میں ذرا آپ کو وہ سیرت حلبیہ سے وہ حوالہ بھی دکھا دوں جو آپ نے جھوٹ باندھا مجھ پر کہ جی وہ ایسا حوالہ ہے ہی یہ نہیں اس حوالہ میں۔ بھی شو کر دیں مفتی صاحب جو میں نے اب بھیجا ہے، سوری۔ ہاں جی یہ ذرا اب یہ ذرا دیکھیں، میرا کیمرہ آن ہے، ذرا یہ دیکھیں۔ جی جی وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کا کیمرہ آن ہے۔ ہاں یہ کون سی کتاب ہے، پڑھ کے سنائیں ذرا۔ ہاں جی یہ آپ ہی پڑھ کے سنائیں نا، کیمرہ تو آن۔ آپ بتائیں نا، یہ آپ نے تو بڑے ادھر مجھ پر الزام لگایا تھا جی میں نے غلط سکین دیا ہے، تو یہ دیکھیں ذرا، پڑھیں ذرا۔ یہ لکھا ہوا ہے فرقان فورس۔ یہ فرقان فورس لکھا ہوا ہے؟ جی 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 کیمرہ نہیں آن بھائی، آپ کا کیمرہ نہیں آن۔ یار باقی سب لوگ چپ رہے ہیں، آپ کرنے دیں، وہ پتہ ہے سب کو کیا آن ہے کیا نہیں، آپ خاموش رہیں بس۔ اس میں کیمرہ نہیں آن؟ جی کیمرہ آن ہے آپ کا، فرقان فورس لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا پڑھ کے سنائیں۔ اچھا کیمرہ نہیں آن، یہ کیسے چکر ہے؟ یا تو ایک منٹ یہ نہیں استعارہ کے رنگ میں ڈال لیں نا، بیچ میں استعارہ کا رنگ ڈال لیں، استعارہ کے رنگ میں کیمرہ آن ہے۔ اچھا یہاں سے تو یہ دکھا رہا ہے کہ آن ہے۔ ہاں ہاں وہ استعارہ کا رنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ دکھاتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ایک منٹ میں اس کو پھر دیکھتا ہوں کس طرح نہیں آن۔ یہ اب دیکھیں جی بہترین، اب صحیح ہو گیا، اب ذلی بروزی ہوا ہے۔ جی پڑھوں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھیں ذرا، کیا لکھا ہے؟ فرقان فورس۔ ارے یار کیمرہ نہیں چل رہا، پھر کیمرہ نہیں چل رہا بھائی۔ نہیں یہی تو مسئلے ہیں نا، استعارہ کے رنگ کے بعد جب چھلانگ لگائے نا ذلی بروزی پر تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک منٹ، لو تھوڑیاں چھلانگاں مارن دے چکر چ نا ٹائم وادو ہو گیا ہے، تے 2.25 منٹ تمہیں میں دیتے نے۔ چلو جی ٹائم شروع کر رہا ہوں، ضیاء رسول بولیں گے آپ کہ میں وہ حوالہ سنا دوں؟ سر جی حوالہ سنا دیں۔ جی حوالہ میں سنا دیتا ہوں، یہ لیں جی، یہ لیں، یہ استعارہ کے رنگ میں یا ذلی بروزی نہیں ہے، بالکل اصلی ہے، حقیقی۔ اچھا مکتوبات احمد صفحہ 307 جلد اول ہے، مکتوب نمبر 3 ہے۔ شاید انہی الفاظ کو آپ نے کلمہ رنج و خفگی سمجھا ہوگا، مگر حاشا و کلا میرا وہ منشا نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔ میں پھر بعد اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آئندہ اخراجات کی کمی اور تخفیف کی فکر میں آپ ہی ہوں، مگر گزشتہ تدارک میرے حد امکان سے باہر ہے۔ اس قصور کا خود معترف ہوں۔ یہ لو جی اعتراف کا آ گیا جی مرزا صاحب کا، کہ جو کچھ کتاب کی قیمت میں آیا وہ خرچ ہوتا رہا ہے۔ چلو وہ کتاب کی قیمت میں جو کچھ مد میں آتا رہا وہ خرچ کرتے رہے ہیں،
मगर ये बात कि खुदा ताला के नजदीक मेरे वो मुसारफ किस रंग, ये देखे रंग रंग तेरे रंग 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 में है, और नुक्ता चीनियों की नजर में किसी रंग में, आहा वाह बल्ले ओ बल्ले। इसमें बहस करना नहीं चाहता क्योंकि गुजरी हुई बात को तूल देना कुछ फायदा नहीं, और मेरी राय नाकिस है, और आपका इस फिक्र में पढ़ना माला यल्जिम है। एलो जी, तज़किरा एडिशन चहारम सफ़ा 199 और अल हकम, ये नीचे भी कुछ हवाला जात दिए हुए हैं, पढ़ लें जी। एलो जी, साबित हो गया जी। मिर्जा साहब किताबां दे पैसे ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੇ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਟੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਥਿਕੜੇ ਲੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। या मेरे कैमरे की सेटिंग लगता खराब हो गई है। नहीं नहीं नहीं, खराब नहीं हुई। अच्छा चलो खैर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹਲਬੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਰਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰਸੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਖੈਰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸੂਲ ਨਾ ਕਰਾਓ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी, आई एम प्रेजेंट। मैं गलत तो नहीं बोल गया यार, इंग्लिश कमजोर है मेरी। हाँ जी मौलवी साहब किधर गए? रसूल साहब शाह साहब गल कर रहे हैं मेरी जगह बैठे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਤਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਆਨਤ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਬੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ। ਆ ਬੋਲ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁਰਕਾਨ ਫੋਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਟੱਪ ਗਏ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਲੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਖਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ MZ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਸ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੂੰ ਇੰਜ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਪੁਆੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀਓ ਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਜਲ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਹਬ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਤਕਰੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਚੁੱਪ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ जो फिरके के लोग हैं वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲਾਇਲ ਤੇ ਇਲਮ ਔਰ ਮਾਰਫਤ में ਕਮਾਲ? ਕੱਢੋ ਨਾ ਕਮਾਲਾਤ, ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਕੱਢੋ ਦਲਾਇਲ, ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਦਲਾਇਲ? ਉਹ ਲਿਆਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਛੜੀ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਕਾਹਦੀ ਏ? ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ को जिंदा साबित करके दिखा दो। ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਭਾਈ? इंशाल्लाह एक बरेलवी मौलवी ते दौड़ गया, ज़िया रसूल ला गया पीछे ड्यूटी मुफ्ती साहब दी कि भी तुसी आ जाओ अगे, मेरे को कम जोर है। मैं उसी हवाले दे उत्ते हां इंशाल्लाह ताला। इस सरकारी मुसलमान लिखदे ने माशाल्लाह नबी प्लानिंग करन दिया काफे लुटण दी। मतलब कि नबी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਫਲੇ ਲੁੱਟਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਫਲਾ ਆਂਡਿਆ ਵੇ, ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਬੀ ਖਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟਣ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜੀ ज़िया रसूल ਦੀ ਕਿ ਜੀ ज़िया रसूल ਕਰੇਗਾ ਡਿਬੇਟ 1 to 1। ज़िया रसूल ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰ ਜਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਖੁਤਬੇ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ। ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਜਿਸ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤਗਫੁਰullah ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਲਿਆਓ ज़िया रसूल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਲਓ ਗੱਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ज़िया रसूल ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹ ज़िया रसूल ਨੱਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ज़िया रसूल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ 31 ਅਗਸਤ 1938 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 6। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਖਤ। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार वलीउल्लाह थे और वलीउल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर इन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है हमें हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है, यानी बशीरुद्दीन महमूद खलीफा जानी के ऊपर, क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। ओए जानियो, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੀਰਤ ਹਲਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਝੂਠ,
ਗੱਪ ਮਾਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਬੋ ਸ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵਹਾਨੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਬਤ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਟ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਠੱਗ ਸੀ। 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5 ਰਸਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ। 5 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੋਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਠੱਗ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। जी बोलो जी। जी जनाब, सब दोस्तों ने देखा कि ज़िया रसूल साहब जिन्होंने डिबेट शुरू की वो तो बेचारे भाग गए, ड्यूटी लगा दी मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब जो मैंने हवाला पेश किया उस पर बात नहीं कर सके। जो हवाला मैंने सीरत हल्बिया का पेश किया जिसमें सरकारी मुसलमानों के मुताबिक आका तजारती काफिला लूटने के लिए अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशिद, ये नबी का किरदार है जो सरकारी मुसलमान बयान कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी खाइन पर। मैंने इनसे कहा कि भाई आपकी किताबों में तो लिखा हुआ है कि नबी काफिले लूटने जा रहा है। इन्होंने कहा जी वो तो हवाला है ही नहीं। तो मैंने इनको सीरत हल्बिया में से पढ़कर सुनाया कि सरकारी मुसलमानों के मुताबिक जो नबी है वो काफिले लूटने जा रहा है और बाकायदा जत्था बना करके साथियों को जो है वो पुश कर रहा है उनको। वो बेचारे पता नहीं जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे। एक बाकायदा प्लानिंग के साथ तजारती काफिला लूटने के लिए इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा। पहले तो ज़िया रसूल ने कहा जी मैं तो मानता नहीं जी, ये मैं नहीं मानता। भी तू कौन है, तू नहीं मानता? आपकी सीरत की किताबों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। अब आप अपने बाबों से इनकार कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा आगे ना। या तो अपनी किताबें सारी जलाएं, आप जितनी भी अपनी किताबें हैं वो सब जला दें आप, ताकि लोग ना पढ़ सकें। अब ये तो लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैं अपने जो मैंने हवाला पेश किया है मैं उस पर कायम हूँ। सरकारी मुसलमानों के मुताबिक अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नबी जो है वो लूट मार करता है। बकौल सरकारी मुसलमानों के काफिले लूटता है, तजारती काफिले लूटता है अपने साथियों के साथ। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वो ज़िया रसूल साहब जो भाग गए हैं उन्हें वापस लेकर आए, मेहरबानी करें। जी मेरा टाइम शुरू हुआ। अब ये देखिए सुनिए, और मिर्जा कादियानी जानी था वो मैंने अभी सबूत दे दिया। मिर्जा कादियानी बंगी था। और कादियान के लोग बंग पीते थे। रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफा 606। सिखों के जमाना में से इसके खिलाफ ये हाल था कि मस्जिदों में भंग घुटती थी और घोड़े बांधते थे, जिसका नमूना खुद यहाँ कादियान में मौजूद है और पंजाब के बड़े बड़े शहरों में इसके बकसरत नमूने मिलेंगे। और मिर्जा कादियानी भंगी था। अब आओ मैं तुम्हें मिर्जा कादियानी के शराबी होने के थोड़े थोड़े हवाले देता हूँ। खतूत इमाम बनाम गुलाम सफा 5 के ऊपर लिखा है, ये जनाब अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मियाँ यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप शय खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टॉनिक वाइन की प्लूमर की दुकान से खरीद दें, मगर टॉनिक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे। और टॉनिक वाइन शराबा पींदा सी मिर्जा कादियानी शराबी सी। जबकि अल्लाह पाक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 219 के अंदर फरमाता है कि ये जो शराब है और ये जुआ है हराम है, इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास, कुछ फायदे भी हैं लेकिन व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफइहिमा, एदा जड़ा नफा वे एदे गुनाह यानी इसका गुनाह बड़ा है, नफा कम है। अच्छा, अब देखो ये शराबी मिर्जा कादियानी और मुख्तलिफ किस्म की शराबें पीता था मिर्जा कादियानी। और ये जो कादी यार मोहम्मद है ये वो ही है। मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ गलत हरकत करता था, गलत काम किया करता था। उसके हवाले अगर चाहिए होंगे तो मैं दे दूंगा, पूछना मुझसे, तलब करना, हवाले दे दूंगा आपको। रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था मिर्जा गुलाम कादियानी। 10 महीने का अमल हो गया मिर्जा कादियानी को और मिर्जा कादियानी को उसकी मकत के अंदर से भी 16 दिन तक खून आता रहा रजूलियत की ताकत का इजहार करवाने की वजह से। मेरा टाइम खत्म हुआ। जी मौलवी साहब, आप तो गुस्सा हो गए, जज्बाती हो गए। थोड़ा अपने ऐसा करें, अकेले ना हो, 3-4 दोस्तों के साथ रहें ताकि आप अपने आप को कुछ कर न लें।
تو میں ایک ہی حوالہ پیش کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری براڈ میں اس پر قائم ہوں، اسی حوالے پر میں بات کروں گا۔ سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ جب وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تھے وہ نہ ملا، یعنی کہ وہ تجارتی قافلہ آگے نکل گیا ہوگا، اب اس کا واپسی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ مطلب ایک تو ہونا کہ غلطی سے چلو جی بندہ بعد میں پچھتا لیتا ہے کہ نہیں جی واپس چلتے ہیں سرکاری مسلمانوں کے مطابق، استغفراللہ نعوذ باللہ، باقاعدہ یہ پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ قافلہ جو ہاتھ سے تجارتی قافلہ نکل گیا ہے استغفراللہ نعوذ باللہ اس کو لوٹنے کے لیے، اب اس کی واپسی کا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس میں سے لازمی کچھ دوستوں نے کہا ہوگا کہ نہیں بھائی اب چھوڑیں، اب چلیں گھروں کو، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ قافلہ جو ہے اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے فرمایا یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال و دولت ہے، استغفراللہ نعوذ باللہ۔ یہ سرکاری مسلمانوں، یہ انبیاء کا یہ کردار بیان کر رہے ہیں، مطلب یہ نبی کا کردار ہے کہ وہ اپنا ایک جتھا بناتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے کہ تجارتی قافلہ آ رہا جی، گھبرانا نہیں، قائم رہو، استغفراللہ نعوذ باللہ۔ یہ سرکاری مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ ان لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے جو ہے وہ رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی ہے، ستیارت پرکاش لکھی گئی ہے، ان کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، میں تو صرف شروع سے ایک ہی حوالہ پیش کیا اور میں اسی پر قائم رہوں گا کہ سرکاری مسلمانوں کے مطابق نبی جو ہے وہ قافلے لوٹتا ہے، استغفراللہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ ٹائم آپ کو دیا جی جناب، ٹائم شروع ہو گیا میرا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا غلام قادیانی کی رنڈی بازی سنیے، اور رنڈی بادشاہ مرزا غلام قادیانی خبیث رنڈی بادشاہ ایک نمبر کا مرزا قادیانی۔ اب یہ دیکھیے جناب، ذکر خبیث کتاب ہے مفتی صادق کی، اور صفحہ نمبر 38 ہے، اور عنوان بند ہے اینو کچھ ویندا ہے، اینو کچھ ویندا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے سامنے یہ جو لڑکی تھی ننگی ہو جاتی ہے، ننگی ہو جاتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے۔ اور جناب یہاں پر ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ سیرت المہدی صفحہ 722 کے اوپر قادیانیوں کی حدیث نمبر 780 ہے۔ جناب ایک لڑکی مرزا قادیانی کی، وہ جو بانو رضائی والی ہے، وہ ٹانگیں دباتی ہے۔ اور جناب یہاں برکت بی بی کا بھی سن لیں، سیرت المہدی صفحہ 214 ہے۔ اور جناب وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی ہے، ساتھ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے نا رحم دانی کے اندر بڑی درد ہوتی ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ تو مرزا قادیانی اس کو کیلے دے رہا ہوتا ہے، ہاں جی، اور یہ کیلے لے رہی ہوتی ہے کہ یہ تبرک ہے، با برکت کیلے ہیں، گھر جا کے لوں گی۔ تو مرزا قادیانی وہی پر نہ منگوا کے 10 قطرے ڈال کے بتاتا ہے اس طریقے سے تو نے یہ قطرے لینے ہیں۔ اب دیکھو مرزا قادیانی کے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اس کی خدمت میں رہتی ہے ڈاکٹرانی۔ تو مرزا قادیانی اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب مرزا کا وہ مرتی ہے وہ لڑکی، تو اس کا دوپٹہ لے کے مرزا قادیانی ایک وہاں کمرے کے اوپر بندوا دیتا ہے کہ آتے جاتے جو ہے نا دل پشوری کرتے رہیں گے، ہاں جی۔ اور بیت الدعا کی کھڑکی کے اوپر اس نے اس کا دوپٹہ بندوا دیا، ہاں جی۔ اے کیڑا دعا دا طریقہ ہے جی؟ سیرت المہدی صفحہ 631 ہے اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 688 ہے۔ وہ بتاؤ بھی تو صحیح ہے کہ زانی شرابی آدمی ہے اور اس کو تم نے مسیح موعود بنایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی خنزیر کو پہلے ایک انسان تو ثابت کر لو، اگلی باتیں بعد میں کریں گے۔ مرزے کو پہلے انسان ثابت کرو اور اگلی باتیں پھر ہم کریں گے۔ چلو جی ٹائم شروع ہوا۔ دوڑ گئے ہو؟ جب نکل گئی ہے ہونا؟ لو وہ بندہ ہی دوڑ گیا، لو آئینہ دکھایا تو دوڑ گئے ہو۔ سل فرقان فوج دا بندہ ہی نا تا نس گیا، انہوں کا کام ہی جواب نہیں نہ ہوتا اتھی گھس جاتے ہیں جتنے مرزے نے آخیا، جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا پھر وہاں ہی گھس جاتے ہیں۔ پیروں دے پار پائی دا ہوندا ہے، قادیانیوں مر جو تسی ہوئے۔ جیو جی شاہ جی زندہ باد، نسا چڑھا جی۔ خبیث کے بچے سیرت حلبیہ دا حوالہ پیش کر رہے ہیں، خبیث کے بچے، ادھر لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں تجھے ہٹا نہیں دیا، تو خود بھاگا، پھر آ جا اوپر آ جا۔
बंदा बेशरम होना चाहिए बस। बेशरम, बेशर्मी दी इंतहा है। जाके नीचे लिख रहा है कि मुझे हटा दिया है। अब ड्रामेबाजियां खबीस के बच्चे ना। नहीं, किसी बंदे ने नहीं इसको हटाया, बिल्कुल नहीं, किसी ने हटाया रिमूव नहीं नहीं। किया। ऊपर आने वो हैं आप तो कार्ड उसके- डाले। मैं आपको एक मिनट सब खामोश रहे, मैं आपको लेता हूँ यार। एक जगह खाली करें, एक बंदे की खाली जगह है। खाली करें, इसको मैं लेता हूँ। जगह खाली है जी, जगह खाली है। ऊपर आओ जी, कार्ड डालो। आपको इनवाइट कर दिया मैंने, आ जाए भाई। ये वो फुरकान फोर्स है जो इनके 2 नंबर खलीफा ने बनाई थी ना, उस रबवा में आके, आपको याद होगा 1950 के बाद। ये उस फुरकान फोर्स का बंदा है, ठीक है, उसका तल्लुक उस फुरकान फोर्स से है। लेकिन बात यह है भाई फुरकान फोर्स साहब, आपने यहाँ बराड में एंटर होके सवाल ये किया था, तब मैं ड्राइव कर रहा था, अब मैं रुका हुआ हूँ। आपने कहा था कि भाई नबी जो होता है उसका कोई किरदार, कोई मयार आप लोगों के पास है कि अगर कोई बंदा नबूवत का दावा करे तो उसको परख लें। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ के कहा था कि कुरान में लिखा हुआ है मा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, नबी खाइन नहीं हुआ करता। अगर किसी बंदे ने खयानत की है और उसको खुद एतराफ़ है कि मैंने खयानत की है, इल्ज़ाम नहीं, किसी का इल्ज़ाम नहीं, खुद वो मोतरिफ है इस कसूर का कि मैंने खयानत की है, तो फिर उसका नबूवत का दावा झूठा है। मैंने जरा जाना है तो जी, जी। भागने लगूं भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं फारिग हो गया, कोई गल नहीं, मैं निमट लूंगा जी। फुरकान फोर्स साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कोई बंदा खुद ये तस्लीम कर रहा है कि मैं इस कसूर का मोतरिफ हूँ कि मैंने खयानत की है, तो उसका नबूवत का दावा बातिल है, वो झूठा है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया था कि मेरे बाद झूठे मुदय्यन नबूवत इस उम्मत में आएंगे, खुद को नबी कहेंगे, हालांकि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो ये जो मुदय्यन नबूवत बाद में पैदा हुए, आपने पूछा कि इनमें से किसी को अगर परखना हो तो एक मयार पहला आपके सामने पेश किया गया। जवाब आपने ये दिया कि सीरत हलबिया में ये बात लिखी हुई है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपने साथियों को कि कुरैश का काफिला शाम से आ रहा है, मक्का, क्योंकि मक्का वाले जो काफिले हैं वो मदीना से गुजर के जाते थे, तो इनको रोकना है। ज़िया भाई आपसे बार बार पूछ रहे थे कोई काफिला लूटा नबी पाक ने? नहीं, किताब में लिखा हुआ है। कोई लूटा नबी पाक ने? नहीं, किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा आ जाओ लूटें इसको। भाई अगर किताब में ये लिखा होगा भी बगैर सनद के, तो हमारे लिए वो किताब हुज्जत नहीं। पहली बात तो ये है। ज़िया भाई ने भी आपको कहा तमाम मुसलमानों का ये मौक़िफ़ है कि हमारी बुनियाद कुरान और हदीस है, हमारे मुसल्लमात कुरान और हदीस। अगर सही हदीस से ये बात दिखा दो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिला लूटा या काफिला लूटने के लिए अपने साथियों को कहा कि अहले कुरैश का काफिला लूटें, हम उसको तस्लीम कर लेंगे। अगर किसी सीरत की किताब में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है, पता नहीं ये तर्जमे की गलती है, पता नहीं उसने गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है, ये बेबुनियाद बात है, इसको हम कबूल नहीं करते। आप भी कहें कि आपके मिर्जा साहब की जो तहरीर आपकी आंखों के सामने रखी गई, आप उसको कबूल नहीं करते। वो खुद अपने मिर्जा साहब ने अपने हाथ से लिखी है, वो किसी की लिखी हुई नहीं है। वो जो जिक्र हबीब की इबारत या वो काजी यार की जो इबारत है कुर्बानी वाली, वो नहीं आपके सामने पेश की। अगर किसी और की इबारत आपके सामने पेश करें तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह तुम सीरत हलबिया की इबारत कबूल नहीं कर रहे, मैं इसको कबूल नहीं करता, ठीक है ना। तो हमारे सामने भी वो दलील पेश करें जो हमें कबूल हो। आपके सामने जो दलील पेश की गई, आप कह दें मुझे नहीं कबूल, या कह दें कि हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि लोग पैसे दें किताब के लिए और बंदा जनाब वो खा जाए और कहे कि लोगों ने मुझे पैसे तो दिए थे किताब के लिए, वो मुझसे इधर उधर के कामों में लग गए हैं। ऐसा भी नबी हो सकता है। अब आपकी बारी है, बात करें जी। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। पहले तो वो मुफ्ती ज़िया रसूल साहब भागे, उसके बाद ये अपना मुफ्ती मुबशर साहब, पहले तो उन्होंने मुझे खुद रिमूव किया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और झूठ बोल दिया जी मैं चला गया, मैं यहाँ मौजूद था। पहली बात तो ये। अब उन्होंने आपकी ड्यूटी लगा दी है कि जी अब आप आ जाएं।
میں اسی ایک ہی حوالے پر بات کروں گا جو میں نے پہلے پیش کیا، اسی پر میں قائم ہوں۔ سرکاری مسلمانوں نے یہ لکھا، آپ مانیں نہ مانیں، آپ کے بڑے لکھ گئے، اب آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا، تسی کل ایک چھوٹے جے پتہ نہیں کی کہنا نہیں چاہیے، بھابی ہو تنوں تے بریلوی نہیں مانتے، باقی دوسرے مسلک والے فرقے والے نہیں مانتے، تسی اپنی گل کرو۔ باقی جتھے گل رہ گئی ہے سیرت حلبیہ دی، تے اے سیرت دی کتاباں 'چ لکھیا ہویا ہے، تہاڈے بزرگ لکھ گئے نے، ہن اینوں برداشت کرو۔ تہاڈے بزرگ کی لکھ دے نے، تسی کیا کہ نہیں جی اونوں لٹ مار نہیں سی کرنی، کچھ نہیں سی کرنا، اے لکھ دے نے کہ جی تجارتی قافلہ نفع حاصل کرنے گیا تھا، وہ نفع کما کر واپس ادھر ہی سے ہو کر مکے جانا ہے اس نے۔ آخر آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے فرمایا یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو۔ واپس کر دینا ہو سکتا دوستانوں نہ سمجھ آیا ہوئے۔ یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اے سرکاری مسلمان نے جی اے لکھ رہے نے کہ نبی جڑا وے او لٹ مار دی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اے پلاننگ کر رہا جی لٹن دی قافلہ۔ وہ ادھر دے دیہاتاں دے اندر رات نو سینچ جا ڈاکو راج، اتھے لوگ جڑے نے رات نو ڈاکو جڑے نے جتھے لے کے ہائی ویاں تے جڑے نے بساں روکدے نے، انہاں نوں پتہ چلدا کراچی تو لاہور بس آندی، او چ تاجر موجود نے۔ وہ تسی کی کردار بیان کرن دے ہو نبی دا؟ مطلب ہے کہ تسی دنیا نوں دکھا رہے ہو۔ جی سکین دکھائیں، سکین دکھائیں، سکین دکھائیں۔ پہلی بھی کہا سکین دکھائیں، نہیں دکھایا۔ بندے نہ بھائی بولے میری باری ہے استاد۔ او ہیلو خاموش رہے۔ رائل مغل صاحب، چلو یار حد ہو گئی ہے، ایک اور آ گیا بھی بندہ۔ نہیں جو بولے گا اس کو نیچے اتار دینا، نہ کوئی بولے۔ اب بات ختم ہو گئی آپ کی؟ جی فرقان فور صاحب، گزارش یہ ہے اگر تو آپ نے صرف اس وجہ سے نبی پاک کو گالی دینی ہے کیونکہ آپ کے مرزا صاحب کی تحریر آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھی گئی، جس میں خود آپ کے مرزا صاحب مان رہے ہیں کہ میں اس قصور کا معترف ہوں کہ لوگوں نے مجھے پیسے دیے تھے 50 کتابیں لکھنے کے لیے، میں وہ کھا کے ڈکار مار گیا، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے وہ پیسے ادھر ادھر کے کاموں میں لگ گئے، یعنی مجھ سے یہ خیانت ہو گئی ہے، لوگوں نے میرے پاس پیسے رکھوائے تھے کتاب لکھنے کے لیے۔ یہ ہے اصل بات۔ ہم نے اس میں اگر کوئی ہیرا پھیری کی ہے یا ایسی بے سند بات کی ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے، کسی کی سنی سنائی بات سنا دی ہے، یا کوئی ایسی کتاب جیسے وہ اسلامی قربانی کتاب ہے قاضی یار کی، وہ آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اگر اس طرح کی کوئی کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو آن نہیں کرتے، ہم اس حوالے کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر آپ بات پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، وہ پتہ نہیں اس میں بھی لکھی بھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی، ابھی تک آپ نے وہ سکین بھی پیش نہیں کیا۔ مفتی صاحب نے البتہ وہ کتاب کھول کے دیکھی ہے اور انہوں نے سکین آپ کے سامنے کیمرہ کھول کے دکھایا کہ وہاں پر یہ بات لکھی نہیں، اگر لکھی بھی ہو۔ سیرت حلبیہ مجھے پتا ہے بہت ساری لغو باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے، اگر اس میں کوئی اس طرح کی لغو بات لکھی بھی ہو تو یہ حجت نہیں ہے۔ حجت مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ سیرت کی کتب میں کئی باتیں صحیح لکھی ہوئی ہیں، کئی غلط لکھی ہوئی ہیں۔ جو بھی بے سند بات جس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ اگر کسی نے بڑے سے بڑے مفسر نے بھی لکھی ہے، ہمارا دل کرے ہم اس کو صحیح سمجھے تو قبول کر لیں گے، اگر وہ کسی حدیث سے مطابقت رکھتی ہے، قرآن سے مطابقت رکھتی ہے، اگر وہ غلط ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کوئی پہاڑ نہیں گرنے لگا۔ جو بات آپ نے پیش کی ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ سکین نہیں پیش کیا، اگر سکین پیش کرو اور یہ واقعتاً سیرت حلبیہ میں لکھی ہوئی ہو، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر کوئی حرف آئے گا۔ آپ بھی کہو میں مرزا قادیانی کی بات کو مسترد کرتا ہوں، یہ جھوٹ لکھا ہے مرزا قادیانی نے، مرزا صاحب کو لوگوں نے پیسے دیے تھے 50 کتابیں چھاپنے کے لیے، مرزا صاحب نے لکھ دی تھی 50 کتابیں، یہ جھوٹ بول گئے مرزا صاحب کہ مجھ سے وہ پیسے خرچ ہو گئے، کہو، آپ تو انکار کر نہیں سکتے، تو بدلے میں صرف ایک ادھی پچدھی عبارت جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، وہ لا کے آپ پیش کر رہے ہو۔ اب سننے والے سن کے فیصلہ کر لیں کہ ان کی دلیل کی کتنی اہمیت ہے اور ہم نے جو دلیل پیش کیا اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ہے جی
नबूवत का एक मयार, अगर कहें तो मैं और मयार भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। इस मयार पर तो आपने देख ही लिया है कि आपके मिर्ज़ा साहब कहाँ तक पूरे उतरते हैं। खयानत करने वाला नबी नहीं हुआ करता। कुरान ने कहा मा कान लिनबिय्यिन अन यगुल, नबी खाइन नहीं होता। आपका मुंह बोला नबी खुद मोतरफ है कि मैंने खयानत की है। इसके बारे में कुछ फरमाए। माइक आपका है। नीचे से कौन बंदा ऊपर उठा रहा है? हाँ जी, बहुत से दोस्त ना जो हैं उठाए वो नीचे नए, से मॉडरेटर हजरात। हाँ जी, बहुत से दोस्त अभी जिन्होंने ब्रांच ज्वाइन की है, नए आए हैं, उनको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले ज़िया रसूल खमीनी से बात हुई, वो भाग गया। उसके बाद जो है मुफ्ती मुबश्शिर साहब आए, उनके हाथ में दिया गया, भाग दौड़, फिर वो भागे। अब ये आमर नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तकरीर इन्होंने माशाल्लाह की है। मैंने इनके सामने सीरत हल्बिया का हवाला पेश किया, जिसमें एक तजारती काफिले को लूटने के लिए अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशिद सरकारी मुसलमानों के मुताबिक एक नबी, मतलब नबी खाइन नहीं होता, लेकिन सरकारी मुसलमानों के मुताबिक नबी लूटमार अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह करता है। और वो पूरा जत्था लेकर के, जिस तरह सिंध के डाकू जो हैं हाईवेज पर तजारती काफिले लूटते हैं, बसें लूटते हैं, ट्रेनें लूटते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के लिए जो बंदा रहमतुल लिल आलमीन है, जो बंदा हमारे लिए रोल मॉडल है सरकारी मुसलमानों के मुताबिक, वो काफिले अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह रोडों पर वो काफिले लूट रहे हैं साथियों के साथ। वाह। और ये वहाबी मौलवी साहब कहते हैं कि जी असी इस हवाले नूं नहीं मानते क्योंकि असी जरा वे इहदी को सनद नहीं हैगी। वो भी तुहाडे बुजुर्गां ने लिखिया है, या तो सारियां किताबां जला दो। ये सब किताबें आपको जलानी पड़ेंगी क्योंकि जो आपके बुजुर्गों ने लिख गए हैं, अब उनका आपको दिफा करना है, उससे नजर नहीं चुरानी आपने। अब इसका दिफा करें। अगर आपसे नहीं हो सकता, किसी और बड़े मौलवी को लेकर के आए जो इस पर बात कर सके। खाली ये कह देने से कि जी मैं इसे नहीं मानता या हम इसे नहीं मानते, ऐसे बात नहीं होगी। आपको इसका दिफा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो किस मकसद के लिए गए, ताकुब क्यों किया, तजारती माल में से क्या नफा हासिल करना चाहते थे, ये बताएं हमें। माइक आपको दिया। ये जनाब बागी जी मौलवी साहब, मैंने आपको दिया अपना टाइम। अच्छा, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी, मैं बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है फुरकान फोर साहब, पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग आवर्स हैं, मैं बिजी था, मैं अपनी जगह पर ज़िया रसूल भाई को माइक देकर गया था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने आपको बताया था, आपने खुद सुना। ज़िया रसूल भाई भी बिजी हो गए। जाहिर है ये टाइम है काम का, मजदूरी का, लोग अपनी अपनी मेहनत मजदूरी करें। हमारा कोई ये पेशा तो नहीं है ना, हमारा कोई जरिया आमदन तो नहीं है, टिकटॉक से कोई पैसे तो नहीं कमाने। अगर वो मसरूफियत की वजह से चले गए हैं, बंदा तो मौजूद है ना बात करने के लिए। तो इस तरह की पहली तो बात यह है कि ये ताने मेने अच्छी बात नहीं है कि फलां चला गया, फलां भाग गया, फलां आ गया, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जवाब दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि सीरत हल्बिया के हवाले को कबूल करो, जितनी भी बातें, जितने भी तुम्हारे बाबों ने, बुजुर्गों ने लिखी हैं, उनकी हर एक बात कबूल करो। कभी किसी मुसलमान ने यह दावा किया है आपके सामने कि 14 सदियों में जितनी भी किताबें मुसलमान उलमा की तरफ से या मुफस्सिरीन की तरफ से तफसीर या बातें लिखी गई हैं, उनके एक एक लफ्ज, एक एक हरफ को हम ऑन करते, कभी किसी ने कहा है? हमारी बार बार कहा जाता है कि हमारे मुसलमात हैं कुरान और हदीस। अगर किसी बड़े से बड़े बाबे की भी बात कुरान और हदीस से मुताबिकत नहीं रखती, हम उसको दीवार पे दे मारते हैं। भले किसी इमाम की बात हो, आलिम की बात हो, मुफस्सर की बात हो, मुजद्दिद की बात हो, मुहद्दिस की बात हो, उनकी अपनी बात की कोई अहमियत नहीं। बात चलेगी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, किताब और सुन्नत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नती। दो चीजें मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, इनको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक है अल्लाह की किताब, एक है मेरे उसके नबी की सुन्नत। ये दो चीजें हैं, बाकी सारी चीजें इनके नीचे हैं। किसी बाबे की, किसी बुजुर्ग की सीरत हल्बिया हो या सीरत कोई और कोई नाम उसका हो, हमने देखना है। अगर वो किताब और सुन्नत से मुताबिकत बात रखती है ठीक है, नहीं रखती
हम उसको नहीं ऑन करेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। हमने जो आपके सामने हवाला पेश किया है, क्या हमने कोई ऐसी बेसनद बात पेश की है, बेसनद कौल पेश किया है? हमने किसकी किताब से बात आपके सामने रखी है? या कुरान की आयत रखी है, या आपके मिर्जा साहब के अपने हाथ का एतराफ़ रखा है? कुरान कहता है मा कान लिनबिय्यिन अन यगुल, और मिर्जा कदियानी साहब कहते हैं मैं इस कसूर का मोतरफ हूँ कि लोगों ने मुझे पैसे दिए थे किताब छापने के लिए, वो मुझसे इधर उधर के कामों में खर्च हो गए। अब बताएं, नबी हो सकता है वो बंदा? नबूवत का दावा उसका मान लोगे जो कहता है कि मैंने तस्लीम किया कि मैंने अमानत में खयानत कर दी है? मैं तस्लीम करता हूँ। और कुरान कहता है कि नबी खाइन नहीं हो सकता। ये एक झूठी बात नहीं है, घड़ी हुई बात नहीं है, बेसनद कौल नहीं है, गलत तर्जमा नहीं है, बल्कि आपके मिर्जा साहब का अपना लिखा हुआ खत है। इस पर कुछ फरमाएं। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि क्या ऐसे बंदे को आप मानते हैं कि ये नबूवत का दावा कर सकता है, जो खुद मानता है कि मैंने पैसे खा लिए लोगों के? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप खुद कह रहे हैं कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो उसवा हसना है दुनिया के लिए, और किसी बाबे ने इस तरह की बात लिख दी उनके बारे में, बकौल आपके सरकारी मुसलमानों ने बात ये लिख दी, तो बात में गलती है ना। आप ये कहें कि ये बात गलत है लिखी हुई, नबी रहमत की बात नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि ये उनकी बात नहीं हो सकती, बात में गलती है ना, नबी की ज़ात में तो गलती नहीं है। हम जो आपको पेश कर रहे हैं वो आपके मुंह बोले नबी की ज़ात की गलती है। इसका जवाब दें। वो खुद मोतरफ हैं कि मैंने खयानत की है कोई जवाब आपके पास? आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो तमाम दोस्त जो अभी अभी ब्रॉड पर तशरीफ लाए हैं उनको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो बात शुरू हुई थी वो ज़िया रसूल खमीनी साहब से थी, पहले वो भागे, उसके बाद दूसरा नंबर पे मुफ्ती साहब मुबशर साहब अल मारूफ दुरुस्त करें। ज़िया रसूल अमीनी अपने अल्फाज खामोश रहें शार्प शूटर, कहने दें, खामोश रहें। अच्छा जी, मैं फिर से शुरू करता हूँ। ये दरमियान में एक दोस्त आ गए। सबसे पहले बात शुरू हुई ज़िया रसूल अमीनी साहब से, वो भागे। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब को उन्होंने झंडा पकड़ाया कि जी आप आएंगे जरा इनसे बात। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब को उन्होंने झंडा पकड़ाया कि जी आप आएंगे जरा इनसे बात। उसके बाद मुफ्ती मुबशर साहब, ओ भाई बात तो करने देना यार, बीच में आप क्यों लोग आ जाते हैं? मैं म्यूट हो जाता हूँ अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो। जी इजाजत है अमन नजीर साहब? जी उनको मैंने नीचे उतार दिया है, अब जो भी बोलेगा उसको नीचे उतार दिया जाएगा, डोंट वरी। जी मेरा टाइम होता है शुरू? करें। अच्छा जी, तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बात ज़िया रसूल अमीनी साहब से स्टार्ट हुई, वो भागे। तो ये बहाने ही होते हैं ना कि जी मैं हूँ जा रहा, मैं कमते हैं। भाई आपने फिर क्यों तशरीफ लाए? आपको बात नहीं करनी थी ना जब आपको काम था। उसके बाद उन्होंने झंडा पकड़ाया जी मुफ्ती मुबशर साहब को, बरेलवी साहब को, वो भी तशरीफ ले गए। पहले तो उन्होंने बड़ा बहाना किया, पहले तो उन्होंने यकदम जो है मुझे पहले गिराया, यहाँ से नीचे किया, तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले ली और मैंने उनको लिखकर भी कहा कि मैं तो मौजूद हूँ। उन्होंने बड़ा रोला पाया जी नठ गया, मैं मौजूद था। खैर उसके बाद जाते हुए अब उन्होंने झंडा जो है वो आमन नज़ीर साहब को पकड़ाया है। मैंने एक ही स्कैन पेश किया सीरत हल्बिया से, जो कि सीरत की किताब है जो कि सरकारी मुसलमानों ने लिखी है। अब क्योंकि उसमें ये सारा लिखा है, अब ये उसे कबूल करने से इनकारी हैं, क्योंकि इनको पता है कि पकड़ाई हो गई है। बुजुर्ग इनके जो लिख गए हैं उसका अब ये दिफा तो कर नहीं सकते, अब उससे जान छुड़ानी है। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं उनकी सिर्फ खिदमत के लिए उनको मैं बताता चलूं कि मैंने सीरत हल्बिया की किताब में से एक हवाला पेश किया कि काफिला कुरैश की वापसी की इत्तला। उसमें बताया जा रहा है कि तजारती काफिला जिसके ताकुब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हुए थे वो ना मिला, क्योंकि वो निकल गया, पहले निकल गया, उसे खबर मिल गई होगी, वो निकल, अब उसकी वापसी का इंतजार हो रहा है। तो सरकारी मुसलमान लिखते हैं अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा उनको तसल्ली देते हैं कि अब आ रहा है काफिला वापस, माल के साथ आ रहा है। पहले तो इन लोगों ने कहा नहीं जी वो लूटा नहीं, उसके लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए गए थे, लेकिन यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि वो नफा कमा कर वापस इधर ही से होकर उसने मक्के जाना है। तो आपने कहा कि भाई जिसमें इनका मालो दौलत है, कुरैश का तजारती काफिला आ रहा है, इसमें मालो दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। ये भी नहीं कि कोई उसको रोकना है, प्यार मोहब्बत से समझाना है, उस पर हमला करने के लिए ये सरकारी मुसलमान लिख रहे हैं।
ये इनके बाबों ने लिखा है। अब ये अपने बाबों से जान छुड़ाते हैं, नहीं जी उनसे गलती हो गई, ये तो ऐसी बातें नहीं है, हदीस में नहीं है, उसमें नहीं। भाई आपके बाबों ने सीरत की किताबें लिखी हुई हैं, आखिर ने सोच समझ के तहकीक करके लिखा होगा। अब आपको चाहिए कि इनका दिफा करें, क्योंकि जब ये बातें पढ़ते हैं तो फिर जो हिंदू लोग या ईसाई लोग या और जो एतराज करने वाले हैं वो कहते हैं कि जी सिंध के डाकू भी यही काम करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। आप जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं, सरकारी मुसलमान, उनका ये किरदार बयान कर रहे हैं कि वो काफिले अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लूटते थे रोडों पर, रोड रस्तों पर, या मतलब जो तजारती काफिले थे। तो मैं इसका जवाब इनसे मांग रहा हूँ। ये कभी इधर निकल जाते, कभी, अब ये तीसरे मौलवी साहब है जो लगे हुए हैं, पहले तो 2 भाग गए हैं। अब आमन अजीज साहब आपकी बारी है, मैं माइक आपको देता हूँ। ठीक हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी। 3 दफ़ा जब से मैं आया हूँ 3 दफ़ा आपने बात की है और तीनों ही दफ़ा वही बात दोहराई है, कोई तब्दीली नहीं, अल्फाज में भी तब्दीली नहीं है। तो कोई नए बंदे यहाँ पर नहीं आ रहे, वही बंदे हैं जो काफ़ी देर से सुन रहे हैं। अब मैं आपको एक फिक्री बात पूछकर माइक आपके हवाले करने लगा हूँ। जो बात आप बार बार पेश कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि ये किताब की गलती है या ज़ात की गलती है? क्या आप मानते हैं कि ये नबी पाक की ज़ात में गलती पाई जाती थी माअज़ल्लाह, या ये किताब की गलती है जिसने लिखा? इसका जवाब दे दे माइक आपका। जी, इसका जवाब ये है कि सरकारी मुसलमानों के मुताबिक ये बात जो है, जिन्होंने तहकीक की है, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है, नकल कुफ्र कुफ्र बाशिद, उनके मुताबिक तो यही किरदार था, यही किरदार था जो लिखा हुआ है, जो सरकारी मुसलमानों के मुताबिक है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपके उलमा ने लिखा है, आपके बुजुर्गों ने लिखा है। माइक आपके हवाले। ठीक हो गया ना मोहतरम, मैंने अर्ज कर दिया कि जिसने ये लिखा है या तो उसके सामने जाके पेश करें या उसके सामने जाकर पेश करें जो इसको ऑन करता और कहता है कि हाँ ऐसा ही नबी पाक ने किया था। मैं तो इसको कबूल नहीं करता। ये हो गई मेरी बात। अब आप मुख्तसर जवाब दें, वो जो खाता आपके सामने मिर्जा साहब का पेश किया गया है उस पर आपका क्या जवाब है? जी आमन अजीज साहब, मैंने ये हवाला पेश किया। सरकारी मुसलमानों की ये किताब है जिसमें से हवाला आपको पेश किया गया, जिसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा, अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रोल मॉडल हैं, उनके बारे में ये किरदार जो है वो सरकारी मुसलमान लिखते हैं कि अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लूट मार, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशिद वो किया करते थे, बाकायदा जत्था बना करके हमला किया करते तजारती काफिलों पर। ये किरदार है, ये रोल मॉडल होता है। ये आप क्या किरदार बयान करना चाहते हैं पूरी दुनिया को? आप क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? माइक आपके हवाले। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा है कि जो खत आपके सामने पेश किया गया उस पर आपका क्या कहना है? आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जो शख्स हमारे लिए रोल मॉडल है, क्या वो लूटमार इस तरह सरकारी मुसलमानों के मुताबिक कर सकता है? क्या वो काफिले लूट सकता है? इसका जवाब मैंने दे दिया कि जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं वो इस तरह नहीं कर सकते। ये इबारत गलत है, इसको मैं आउन नहीं करता। अब उस खत का जवाब दीजिए जो आपके सामने पेश किया गया। भाई आप ऑन नहीं करते ना, आपके बुजुर्ग तो लिखते हैं ये। आप कौन है? आप तो एक फर्द वाहिद है जी, मैं ऑन नहीं। आपके ऑन करने ना करने से क्या होता है? आपके बुजुर्ग लिखते हैं ये। आपके हवाले माइक। खत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम यहाँ 3 बंदों ने बात की, तीनों ने इस इबारत को डिसाउन किया। खत का जवाब क्यों नहीं दे रहे? खत का जवाब दीजिए। क्या आप ऑन करते हैं इस इबारत को कि मिर्जा साहब ने खयानत की है अपने उस माल में जो लोगों ने किताब छापने के लिए दिया था? भाई आपके बुजुर्ग लिखते हैं कि नबी वो होता है अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह जो काफिले लूटता है। आप इसको ऑन करते हैं? आपके बुजुर्गों की बातों को आप ऑन करते हैं? कम से कम आधी दर्जन दफा कह चुका हूँ मैं इसको ऑन नहीं करता। कैसे लिख कर दूं आपको? मैं ऑन नहीं करता। ओ भाई आप तो फर्द वाहिद है ना, आप ऑन करने ना करने मेरी बात सुने, मेरी बात अब मेरी बात तो नहीं करने सरकार, मेरी बारी थी, मेरी बारी थी। यहाँ से कोई एक लो जी एक और आ गया, एक और आ गया। मैं इसको ऑन करता हूँ। माइक म्यूट रखें शार्प शूटर। एक बंदा भी मुसलमान नहीं कहेगा कि नबी पाक ने कभी काफिला लूटा है। यहाँ तक कि जो मिर्जाई मुखरिज मिन अल मिल्ला हैं वो भी नहीं मानेंगे। आप मिर्जाई हैं, आप मानते हैं नबी पाक ने काफिला कोई लूटा? अरे भाई कम से कम आपकी अपने उलमा की तो बात माने ना, उन्होंने तो ये लिखा हुआ है। उलमा की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। भाई आपकी बात तो मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, उलमा लिख रहे हैं। आपकी बात हुज्जत है कि नहीं?
भाई पहले इस पर सीरत हलबिया पर बात करें, गुस्सा ना वो करें। सीरत थोड़ा हलबिया का पेशेंस जवाब दिखाएं। दे दिया गया है, खत का जवाब आपने पिछले 1 घंटे से नहीं दिया। अरे भाई, सीरत किताबें हलबिया का मौजूद जवाब हैं। हर टर्न में हमने आपको दिया है, खत को आपने घूम कर देखा भी नहीं। इस खत का जवाब दें, आप इस खत को ऑन करते हैं या नहीं करते, जवाब दें। भाई बात ये है कि आपके उलमा ने सीरत की किताबों में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, किरदार पूरा बयान किया है। अब आप कहते हैं जी आप नहीं मानते, भाई आपके मानने ना मानने से तो कुछ नहीं होता ना, किताबों में तो ये लिखा हुआ है। हर भाई बंदा अगर पढ़ता है, हर किताबों में शख्स को इसके पता है। अलावा भी कोई लगभ बात लिखी हो तो हमने कब दावा किया है कि हम हर किताब की हर बात को ऑन करते हैं और हर बात सही है? गलत बातें भी लिखी हुई हैं। तो भाई आप कहें ना, आप कहें कि जो भी आपके उलमा ने लिखा है वो सब जो है वो बेकार लिखा है, उन पर कोई एतबार नहीं है, सब ऐसा नहीं किताबों के बारे में होता, लिखें। ऐसे नहीं होता। मेरी बात सुने ना, इसका मैंने आपको तरीका बताया है कि किसी भी आलम दीन की बात अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत है। हर बात गलत नहीं है, आलम दीन की हर बात सही नहीं है। ये जवाब कितनी दफा आपको दिया गया है, अब आप हमारे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? देखें मोहतरम, आप समझने की कोशिश करें। ये पहले तो ज़ियारतुल अमीनी साहब ने कहा कि जी मैं तो मानते नहीं उसको, सीरत हलबिया को बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मुसलमानों की किताब है, वरना तो ये कह रहे थे कि वो शायद ईसाइयों की किताब है। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया था कि ये मुसलमानों ही की किताब है। ये फजूल इसमें बात लिखा करने हुआ का है। क्या फायदा है? मेरी बात सुने ना, एक ही बात को आप दोहराते चले जा रहे हैं। ज़ियारतुल भाई ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, अमर नज़ीर ने ये कहा, हो गई बात। आपको तीनों ने कहा कि हम किसी ऐसी बात को ऑन नहीं करते जो किताब और सुन्नत से जिसका सबूत ना मिलता हो। नहीं, आप तीनों मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना। तो हमारे लिए ये देखिए, आपने बात हुज्जत पहले- नहीं है। भाई आपके मानने न मानने से क्या होता है? ये लिखा हुआ है, या आपके तो लिए किताबें वो जलाओ ना। हुज्जत है कि नहीं, आप ये बताएं। हमारे लिए भारत आप हुज्जत नहीं है। मेरी बात आप सुने, अपनी किताबें, आप अपनी किताबें रुके एक सेकंड। मैंने कहा ये भारत मेरे लिए हुज्जत नहीं, जो इबारत आपके सामने पेश की गई वो हुज्जत है कि नहीं आपके लिए? पहले आपको इस किताब पर पहले आपका क्या मतलब है? जो इबारत आपके सामने रखी गई, या कह दें जिस तरह मैंने कहा कि मेरे लिए हुज्जत नहीं है, या हुज्जत है तो उसको कबूल करें और कहें हाँ मिर्जा साहब ने पैसे खाए हैं लोगों के। आप एक तो बात ही नहीं करने दे रहे, मेरी बारी नहीं, है तो बात आप तो बोल एक रहे ही हैं। बात आप करते जा रहे हैं, कोई बात तो बदलनी आपको आती नहीं है। नहीं, वो तो अपने मुफ्ती साहब अगर को देखा ना आपके कि कहीं पास उन्होंने कोई 10 और चीजें। कोई बात है करने वाली तो वो करे ना। इस बात का तो दर्जन से ज्यादा दफा हमने जवाब दिया, हम इस इबारत को नहीं करते नहीं करते नहीं करते। नहीं, बाबू ने लिखी है भाई, लिखी है, लिखी रहे, खसमानु खाए। आप इस इबारत को मानते हो कि नहीं मानते, जो इबारत आपके मिर्जा कादिर ने खुद लिखी है? आप मुझे बात तो करने देना। नहीं, और कोई बात कर, क्योंकि आपकी बात का जवाब तो बार बार दिया जा रहा है। हमारी बात का जवाब आपने 1 घंटे से ज्यादा टाइम आपको दिया गया है, हमारी बात का जवाब आपने एक दफा भी नहीं दिया कि मैं इस खत को मानता हूं, मैं इस खत को नहीं मानता हूं, मिर्जा साहब ने पैसे खाए हैं नहीं खाए हैं, नहीं जवाब दिया। तो कब तक आपको बात करने दी जाएगी? जी बोलूं मैं, इजाजत है? खत के बारे में बोलें। नहीं तो इसके बारे में, तजारती काफिले के बारे में इसके क्यों ना बारे में बोलूं? जवाब दे दिया गया है। तजारती काफिले को नबी पाक ने नहीं लूटा, ना साहबा ने लूटा है। भाई आप तो साथ नहीं थे ना, आप ऐसे मैं वकील साथ से नहीं था, कैसे आप कह साथ रहे हैं? थे। फिर आप भाई कह आपके रहे हैं आपके बुजुर्ग, भाई आपके बुजुर्गों ने तहकीक की है ना यार, एक और बंदा आ गया, ऐसे ना करें ना यार, मेरी बारी है। रजूलियत की है। नहीं, बात तो ऐसे नहीं है, बात बार बार करेंगे, जवाब देना पड़ता है। कितनी बार सुने बात को, बताएं इस्लामी कुर्बानी की बात दुरुस्त मानते हैं या गलत मानते हैं? उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने मिर्जा से रजूलियत का इज़हार किया। किताब मिर्जाइयों की है, मिर्जा कादियानी के सहाबी का कौल है ये। वो तो मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की बारात मिर्जा कादियानी का सहाबी है, उन्हें साहब में जो 313 में शामिल थे। आपकी किताबों में मुरीद खास मिर्जा कादियानी का काजी, खामोश हो काजी जार मोहम्मद, वो कहता है कि मिर्जा कादियानी के साथ खुदा ने रजूलियत का इज़हार किया था। बताएं ये किताब मुस्तनद मानते हैं? नहीं मानते। इनकी क्या जरूरत है ये माने? मेरी बात सुने भाई, वो ये इनकी क्या जरूरत है इनकार करें? इनकी जरूरत क्या इनकार करें? इनके बड़े मानते हैं, ये कैसे मानते उस मिर्जा किताब कादियानी का फतवा दिखाएं साहबी पर, इस्लामी कुर्बानी को मानते मिर्जा कादियानी का फतवा दिखाएं काजी पर। अमन नजीर जवाब साहब, दे आप मुझे मेरा ये ख्याल- कि काजी जा रहे बात ओ दुरुस्त भाई, लिखी है मेरी या बात गलत तो लिखी है, सुन किताबों लेना। में मौजूद है। वो सरकार में जब किताबों होता में तो भी तो मौजूद देना। है, मुझे जवाब दो, बात दुरुस्त है या गलत ये है? असल में ना इस तरह की बात जब होती है ना फुरकान फोरस साहब, तो वो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा होता है। जब आप हमारी ओ बात सर का जी। जवाब ही नहीं देना चाहते
आमन नज़ीर साहब, आमन नज़ीर साहब, आमन नज़ीर साहब, मेरी बात सुने ना। और भी बंदे बुला लो। नहीं बंदा, तो आप जब बात कर रहे हैं तो फिर ये बीच में आ गए। 5 मिनट मुझे दें, वो देखें बंदे किस तरह सीधा होता है। आपके हाँ हाँ, साथ आपको देते 5 मिनट, आपको देते। अमन नज़ीर साहब थोड़ा 5 मिनट इन्हों इनका को मेरी बात सुने, मैंने उसको भी पूरा बाहर भी नहीं आया है। मैंने उनको भी खामोश करवाया हुआ है, इसीलिए कि ये बंदे तो चाहते हैं कि हम आपको इनके हवाले कर दें। ये अभी 2 मिनट में आपकी तबीयत ठीक, लेकिन ये नहीं है हमारी ब्रॉड पे, इस तरह हम नहीं होने देते। हमने उनको खामोश करवाया हुआ जबरदस्ती कि हम किसी अपने ब्रॉड पे आए हुए बंदे के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहते। आपसे बड़े अदब से आखिरी बार पूछा जा रहा है, आपके पास इस खत का कोई जवाब है? आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, ना मुझे बात करने का मौका देते हैं। वो एक ये मलक ऐवान, क्या नईम ऐवान साहब, ये इनको तशरीफ छोड़ लिए आप हैं, खत का ये जवाब जज्बाती देना आदमी चाहते हैं कि हैं। नहीं? भाई आप ऐसा करें ना, अपने सारे दोस्त बुला लें इकट्ठे, क्योंकि आप अकेले कोई से तो ना बंदा हो नहीं, पाएगा ये। आप खुद चाहते हैं कि सारे इकट्ठे होके आपकी इंटेरोगेशन करें? ओ भाई, मैं तो पहले ज़िया रसूल अमीनी साहब से बात कर रहा था ना, आपके सामने वो गए, उसके बाद झंडा थामा। मैं भी पहले उनसे वो गए ना, वो गए ना भाई, उनसे बिजी पहले थे तो नहीं बात करनी थी ना। मेरी बात नहीं, सुने, बिजी मेरी थे बात तो सुने। भाई, बिजी थे तो नहीं बात करनी थी ना। सबर ज़िया रसूल भाई से पहले मैं गया, मैं आपको क्या गया, मैं बिजी हूँ ज़िया भाई बात करेंगे। वो बिजी हो गए, दिन का टाइम है, वो बिजी हो गए, मुफ्ती साहब बिजी हो गए, फिर मैं आ गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने इस खत का जवाब देना है या नहीं देना, या चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ये 3-4 बंदे मिलके आपके साथ बात करें? हाँ जी, मैं जवाब दे दूं। दे खत का जवाब दे। ये जवाब तो मैं, ये सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ कि आपने किताब का जो मैंने हवाला पेश किया, एक ही हवाला पेश किया पूरी ब्रांड में, उस हवाले को हमने जूते की नोक पर रखकर ठोकर मारी है कि हम इस हवाले को नहीं मानते। भाई आप मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना, आप जो मर्जी करें। तो फिर जिसके अच्छा जो इस हवाले को हुज्जत मानता, फिर उससे जाके बात करें। भाई सरकारी मुसलमानों की किताब है, उन्हीं से बात करेंगे। हम सरकारी मुसलमान नहीं हैं। आपको किसने कहा कि हम सरकारी मुसलमान हैं? भाई जिसको सरकार का है मुसलमान, वो सरकारी मुसलमान होता है ना। सरकार ने कहा है मुसलमान, अगर वो इसको आउन करता है तो फिर आप ये हवाला उसके पास ले जाएं। हम इस हवाले को आउन नहीं करते। ये इस तरह के हवाले सीरत की कुतब में, तारीख की कुतब में बहुत सारे लिखे हैं मौरखीन ने, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। भाई सारी सीरत की किताबें आप जलाएं, आग में डालें। क्यों जलाएं? जो लोग पढ़ने वाले वो फैसला कर लेते हैं, ये किताबों सुन्नत के मुताबिक है, पढ़ के सामने से सुना तो रहा हूं, देखो ना मैं क्या मेरी बात सुने, आपने स्कैन भी नहीं पेश किया, ज़बानी भी हमने आपकी बात तस्लीम करके हमने कहा अगर ऐसा लिखा भी हुआ है तो हम इसको ऑन नहीं करते, बात खत्म हो जानी चाहिए। हालांकि आपने स्कैन भी पेश नहीं किया, तो इसलिए हम तो इस तरह की बातों को ऑन नहीं करते। आपके सामने जो बात पेश की गई है, 1.5 घंटा हो गया, आप जवाब नहीं दे रहे। मिर्जा साहब ने किताबों के पैसे खा लिए थे, लोगों ने उनको बराहीन अहमदिया लिखने के लिए पैसे दिए थे 10,000 रुपया, खयानत कर दी थी मिर्जा साहब ने अमानत में, हाँ या ना? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक नबी झूठ मार कर सकता है? ओ भाई, आपके सवाल का जवाब दर्जन से ज्यादा दफा दिया गया है, अब आपसे सवाल किया जा रहा है। आप तो मानते नहीं, आप कहते कि हम दोगे या नहीं दोगे? मैं बात कर लूं, अब एक देखिए मुझे भी देना। अपनी इज्जत करवाए ना, आप बात करें लेकिन अपनी इज्जत नहीं, करवाएं। आप मेरी भले इज्जत ना करें, बस स्कैन का जवाब दें। इज्जत को, मेरी बात सुने, आप जानबूझकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।